तो मतलब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अभी भी जो है हमारी सोसाइटी में नहीं है स्पेशल नीड्स बच्चों को लेके. And then there was one in my lap. It was like the world shattered. The drive So back shattered. home is never ending. Exactly. The And silence. the silence. Okay, God, why me? Now you should accept that you are the child of deaf son. People started distancing their children from my son. पहले वो एक बच्चा है, फिर उसके साथ एक condition है. He has the same emotional needs. He has the same needs to be with parents, with children. कि your child is different, but he's not bad. It is just another way of living in this world. उसको एक society का जो एक स्टीरियोटिपिक मोल्ड में फिट करने की कोशिश ना करें. नहीं, मैं तुम्हें कोक जब दूंगी जब तुम बोलोगे कोक. वी हैव टॉट देम शॉपिंग, वी हैव टॉट देम हेयर कटिंग, वी हैव टॉयलेट ट्रेन देम, वी हैव ट्रेन देम फॉर बर्थडे पार्टीज एंड फ्लाइट्स में ट्रैवलिंग. How should a parent cater to these kind of situation? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है. ये बच्चों की थेरेपी से पहले आप लोगों के साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास तो 1 घंटा है, आपके पास पूरा दिन है. जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही हो, कपड़े बदलो. द होम इज़ अ केओस टाइम. आप बच्चे को बिल्कुल काम एनवायरनमेंट में उठाएं. गुड मॉर्निंग, वेक अप टाइम, जस्ट से. यस, 1-2 साल आपके लिए टफ होते हैं, बट उसके बाद द वर्ल्ड इज़ ओपन. And I've seen a very positive and calming effect on my son whenever I involve him in my daily chores. आप खुद सोचें ना, आप कितनी देर तक खाली बैठ सकती हैं. अगर मैं फ़ोन भी ले लूँ आपसे, सारे आपकी रिस्पॉन्स, बस स्कूल जाएं और आके खाली तो नहीं बैठेंगी ना. ह्यूमन ब्रेन वांट्स टू लर्न. रिलैक्स विद योर किड, दैट विल रिलैक्स यू टू. Assalamu alaikum and welcome to another episode of The Good Influence, a platform where we talk about initiatives, we talk about impactful things, and we bring towards light people who are working towards a positive change. As an advocate for Down syndrome awareness myself, today's topic is incredibly close to my heart. That is special needs children and their inclusion and their education. As a mother, as a parent to a special needs child, I have first-hand observed and experienced societal perception, lack of resources, and how the society perceives these individuals. But जब हम negativity की बात करते हैं, तो we absolutely cannot ignore the fact that there are multiple people out there who are working towards bringing a positive change, who are working towards inclusivity. And today's guest is one of those individuals. Ms. Sadaf Mateen has dedicated her life, her professional career towards inclusion and towards bringing a positive change to light. Her incredible work towards the circle and towards creating positivity and inclusion is truly commendable. So we would be dissecting her journey, her compassion and her passion towards this project. So please welcome Ms. Sadaf Mateen from the circle. Assalamu alaikum, Ms. Sadaf. How are you today? जी, वालेकुम अस्सलाम. I'm fine. आप कैसी हैं? Alhamdulillah. Thank you so much for giving us your time. आज का topic, it's very close to my heart. It's very emotional for me. And I was really looking forward कि हम इस topic पर बात कर सकें. But before we dive into it, I would very much like to know your inspiration. What is your why? So I always ask my guests जब हम इस तरह के किसी topic पे बात करते हैं कि what was your why? Okay, why did you choose this particular field and why did you choose to establish such an organization? So please tell us a little bit about yourself and your journey. Thank you so much. As you said that this is very close to your heart, so I think you and I share the same journey as well, because being a mother of a special needs child, to be honest, I came into this profession without knowing. I wanted to be a doctor, but and I did not know anything about speech therapy. I got married at a very early age, and then I had a son who lost his hearing due to some complications at birth.
then I realized, जिसे कहते हैं ना, the other side of human existence, the way the people view the world and how perspectives change, and how attitudes change Exactly. when your child is diagnosed as someone who does not fall in the Normal category, yes, the yeah, so-called normal category. So I devoted the initial 10 years of my life. I was fortunate to find good people. But then I also realized that, just going for therapy for an hour every day may not be the solution unless the parent understands and make the rehab, a way of life for their own selves as well as the child. The most difficult part was the acceptance. Once the acceptance took place, then everything became very easy. I would not say that I did not enjoy raising him. I really enjoyed every moment, and it's a long time back. It's 30 years ago when there were no facilities, and the one that existed was so difficult to reach and difficult to approach कि आप जब अगर पेरेंट खुद नहीं रोल प्ले करता तो बच्चे के अंदर रिजल्ट नहीं आ सकते थे. So which is why I started, then when he settled, I started studying in this field. I completed my studies. I joined several organizations abroad. And remember, it was a time when there were no emails. Yes. We had to write and stand outside the post office in queues to get information and, to get lessons from them. But, it was a fruitful journey. And then today, my son, who is mashallah a chatterbox, he talks. He went abroad. He went to US for his further education. He did his bachelor's and master's, then came back, and he did work for the corporate sector for a while. That's amazing. Which was a lot of learning, and perhaps he was the first Pakistani who was able to achieve this. But then his heart is always into giving back to the society. So he wants to work for the deaf also. And he says that the resources that are available abroad are not here. Yeah. So he is also on his own journey, where he is working, to develop acceptance, develop infrastructure, working towards their education. So you just mentioned about your struggles in your initial years, and I can imagine, if I talk about myself, then it was back in 2018 when my son was born. So even us time par bhi, I wasn't aware of many organizations, and it was hardly 6 years ago. So I came, in contact with a few people. मैंने भी initially start करा, तो मतलब just to say कि उस time पर भी I struggled. So back then 30 years ago, जब मतलब मैं कहती हूँ अभी अगर taboos थोड़े बहुत break होना शुरू हुए हैं, तो उस time पर तो मतलब they were everywhere. Yes. So when you found out about your child with special needs, so as a mother, how was the society's perception towards you? Like you mentioned, attitudes बदल गए. Even though I'm pretty sure that there would not have been any, mental challenges with the child, just hearing challenges. So, us par bhi, what kind of pressure you had from the society, or what was your family's reaction towards it, and how did you perceive it, and us sab mein bhi positive aap kaise rahi? जी, this is a very very good question. और मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, मुझे हर दफ़ा इसका एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया आंसर नज़र आता है. But yes, at that time, it was like the world shattered. The world shattered, and I have never seen a hearing impaired child or a person in my life. हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, वो वाली feeling भी आती होगी ना? Yeah. And then there was one in my lap, and being a 19-year-old mother, I did not know what to do. And the first thing that started happening, other than my parents, of course, people started distancing their children from my son. And despite, obviously, everybody knows that it's not contagious. Yeah. But they thought that if their child will, interact or play with my child, their child might also be, he might be affected in some way.
बिकॉज दैट वॉज अ सोसाइटी. देखिए, आप अगर बाहर ट्रैवल करें, अभी भी अगर आप देखें तो आपको बहुत बच्चे नज़र आएंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम. लेकिन कई दफ़ा मैं जब इंटरव्यूज़ में जाती हूँ तो मुझसे लोग पूछते हैं हमारे यहाँ ऐसे बच्चे नज़र नहीं आते, बहुत कम, अब थोड़े थोड़े नज़र आने लग गए हैं, लेकिन उस तरह नज़र नहीं आते. कहाँ चले जाते हैं हमारे जिनके यहाँ से बच्चे होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? But I don't know, there was, I met some good people, I had the support of my parents in this. I decided, when I used to interact with my son, I didn't feel that he was any different from anybody. I enjoyed talking with him, playing with him. And then in a way, he and I grew together, we became friends. And we did not need anybody else. Yes, it was a difficult time, and but I don't know, I always remained positive, because whatever I taught my son, he gave wonderful results. He would always work hard, and that's how we sailed through. He studied in mainstream schools. Yes, at that time, imagine, now the schools are giving so much, there's so many reservations, I must say, for inclusion. And that time, I would love to talk about that. yeah, and at that time there was no possibility. But the best part was that he would clear every test in every school. And then they couldn't say no. Yeah. So they would just take, okay, we are giving you a chance. We are giving you, okay, we are taking him on a trial basis. It became difficult making friends, because, a lot of times he wasn't invited to play dates, and he wasn't invited in events. But he started playing tennis. He made some wonderful friends over there. So what I would say, that God has been very kind to me and him, that he always made a way. He always found us a path. He always made a way for us whenever things seems to come at a standstill, and there would be a road. So I must say that I have been amongst the blessed ones that ऐसा ही है, क्योंकि जब आप बात करेंगे ना कि अवेयरनेस नहीं थी और लोग उस चीज़ को कंटेजियस समझते थे, तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हेनेवर आई से द वर्ड डाउन सिंड्रोम, तो अक्सर और बेशतर लोगों का होता है व्हाट इज दैट. Just last week I was talking to somebody, they didn't know about my journey, तो they were asking me कि डाउन सिंड्रोम का मतलब, I'm sorry, मुझे नहीं पता क्या होता है. And for a minute I had to like pause. मैंने कहा okay. तो मतलब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अभी भी जो है हमारी सोसाइटी में नहीं है, स्पेशल नीड्स बच्चों को लेके. और वही बात जो आप कह रही थी अभी के वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं, तो पेरेंटल कम्युनिटी भी जो है ना, वो उनको छुपा के रखना, दुनिया के सामने ना लेकर आना. So I think your efforts as a parent are truly commendable. So when you started working, towards establishing your organization, so I would love to know, okay, what were the barriers initially, and what was the year that you started first, and आपको सबसे जो major barriers और challenges face करने को मिले वो क्या थे? What I would say कि मैंने पहले start किया when I started my work back in 2002 से मैंने काम formally start किया. Wow. तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा बैरियर था वो ये था कि अप्रोचिंग पेरेंट्स एंड कन्विंसिंग देम कि योर चाइल्ड इज़ एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्स. हियरिंग डज नॉट टेक अवे द एबिलिटी टू थिंक, टू enjoy the world, to achieve, to attain in their own way. एक डॉक्टर ओलिवर सैक्स की एक सेइंग है, not a saying, in his book he says कि if a deaf or a child or a blind child or a child with special needs achieves the same path as that of his neurotypical peers, then that child needs to follow a unique path. And that unique path, यानी उस पाथ के ऊपर उसको उसका टीचर, एक पेडागॉज, उसका पेरेंट लेकर जाता है. लेकिन उसे पता होना चाहिए कि उस रास्ते में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, along which he is taking that child. It's very important to know. तो अगर एक पेरेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ,
अभी भी हमारे पास बहुत हज़ारों बच्चे आते हैं, हमको जो हम पेरेंट्स एस मैं बात करूँगी एज पेरेंट्स, जो हम भूल जाते हैं ना, वी फॉरगेट द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, है ना, कि हम बच्चे को फिक्स करने में लग जाते हैं। हम उसकी रिहैबिलिटेशन को एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि पहले वो एक बच्चा है, फिर उसके साथ एक कंडीशन है। Exactly. ठीक है, Very beautiful. पहले तो वो एक बच्चा है, ही इज जस्ट अ चाइल्ड, ही हैज़ द सेम इमोशनल नीड्स, he has the same needs to be with parents, with children. वो जिद भी करेगा, वो चीज़ें मांगेगा भी, वो बात भी नहीं मानेगा, उसकी सारी वही नीड्स होंगी। उसके बाद मगर उन नीड्स के को अचीव करने के लिए उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा। ठीक, वो हमने समझना है। अगर हम उनको समझने शुरू हो जाएंगे तो बच्चे जो है ऑब्वियसली वो उसको रिस्पॉन्ड करने शुरू हो जाएंगे ना। कि एक बच्चा है जिसको बोलना नहीं आता और मैं उसे कह रही हूँ नहीं मैं तुम्हें कोक जब दूंगी जब तुम बोलोगे कोक। Oh my God. सो आपने क्या करा, आपने कम्युनिकेशन को कॉन्टेक्स्ट से निकाल दिया। अब आप बच्चे को फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, यू हैव टेकन द ट्री आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड यू आर ओनली फोकसिंग ऑन फिक्सिंग। कहेगा तो दूंगी, बच्चा साइन भी कर सकता है, बच्चा पिक्चर से भी बता सकता है, बच्चा जेस्चर से भी बता सकता है। ही हैज़ कम्युनिकेटेड in his own way. और आप कह रहे नहीं जब तक ABCD और राइटिंग नहीं आ जाएगी मेरा बच्चा कहीं लैंड नहीं कर सकता। सो मेरा जो इस्टेब्लिश करने के रास्ते में जो मेरा एक सबसे बड़ी स्ट्रगल आती है वो ये आती है, वो पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स एंड सिस्टम के कि आपने एक्सेप्ट करना है कि योर चाइल्ड इज़ डिफरेंट बट ही इज़ नॉट बैड, इट इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। He can achieve everything what we all need. We need an Anne Sullivan, like Helen Keller had one Anne Sullivan. We just need her. उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी ना, because she believed. True. Believe in your child. उसको एक सोसाइटी का जो एक स्टीरियोटिपिक मोल्ड में फिट करने की कोशिश ना करें। वो खुद ही आ जाएगा उस सोसाइटी के अंदर, वो खुद इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो खुद अपनी जगह बना लेगा। और रिहैबिलिटेशन हमेशा 2 वे होती है। You just don't fix the environment, you all fix the child. You also have to adapt the environment, make changes in the environment also. Like when my son was studying abroad, वो जब क्लास के अंदर पढ़ता लेक्चर्स होते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें। नोट टेकर प्रोवाइड करते हैं कि आपके साथ कोई बैठा हुआ है, नोट टेकर। वो आपको रियल टाइम कैप्शन प्रोवाइड करते हैं कि अगर जो टीचर बोल रहा है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चों की स्पीच अच्छी नहीं होती है उनको साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर देते हैं। Yes. एंड दे आर विद यू। और शुरू ईयर से उनका मकसद ये नहीं होता कि नो मेरा बच्चा, अगर आज मैं ये सोचूं माई सन लिव्स हिज लाइफ विदाउट द इम्प्लांट एंड द हियरिंग एड, दैट वोंट बी पॉसिबल। ही विल नीड इट, ही विल नीड those to be able to function। या एक बच्चा जो जिसके साथ लैंग्वेज नहीं है, चाहे उसके साथ ऑटिज़म है, चाहे उसके साथ डाउन सिंड्रोम है, चाहे उसके साथ ADHD है, अगर वो अगर उसको पूरी लैंग्वेज नहीं है और उसे क्लास के अंदर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिल जाता है एट एन अर्ली एज, दैट चाइल्ड विल ब्लॉसम। वो हर चीज़ सीख लेगा विदाउट मिसिंग द माइलस्टोन्स। वो अब क्या हो रहा है कि वो गैप्स ने उसकी में ग्रोथ में आ रहे हैं। वो 1-2 अचीव कर रहा है तो 3 और 4 नहीं अचीव कर रहा। फिर जब वो फेल्ड रिहैबिलिटेशन हो रही है क्योंकि हम प्रोनाउंस पे काम कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं, हम MLU पे काम कर रहे हैं। वही एक हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चे को बस जो सिलेबस में है वो आ जाए उसे। एंड दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो स्ट्रगल अ लॉट। बट नाउ दैट यू सेड इट कि अगर वो ABCD लिख नहीं रहा, अगर सिर्फ बोल रहा है और उसको वो टाइप कर सकता है अगर तो वो सब कुछ कर लेगा। एग्जैक्टली। उसको अगर आप जस्ट लाइक के थ्रोइंग अ चाइल्ड इन द पूल विदाउट टीचिंग हिम हाउ टू स्विम, राइट। तो अभी जैसे आपने ये जिक्र किया कि मतलब बच्चा कम्युनिकेट कर देता है अपने तरीके से,
पेरेंट को जो है वो समझना चाहिए कि उसने कम्युनिकेट कर दिया है। तो आजकल जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स गोइंग अराउंड के डांटे नहीं बच्चे को, बच्चे से ज़्यादा तेज हाथ तो बिल्कुल उठाना आई थिंक वो तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, लेकिन बच्चे को डांटना, बच्चे से चीख के बात करना, या बच्चा किसी भी किस्म की जिद अगर आपसे कर रहा है तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड वेरी सटल एंड वेरी जेंटल। बट इन सब में पेरेंट्स भी जो है वो एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है, इन अ सेंस के लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डू फेस चैलेंजेस विद माई किड एज वेल, जिद के और बदतमीजी के या टैंट्रम्स के। तो आई ऑल्सो हैव अ थ्रेशोल्ड, ठीक है, और कभी कभी द चाइल्ड न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, स्पेशल नीड्स चाइल्ड, दे टेंड टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, उनमें इतनी एबिलिटी होती है। तो पेरेंट्स के लिए लाइक हाउ शुड अ पेरेंट केटर टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें हम बच्चे को चाहे डांट भी नहीं सकते, या डांटना सही है, डांटना सही नहीं है। तो ये जेंटल पेरेंटिंग या क्या कहना चाहिए इसको, वो जो ट्रेडिशनल डैड पेरेंटिंग होती है उसके बारे में व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या कर सकते हैं हम? देखिए, बात यह है कि डांट और थ्रेट्स तो कभी काम नहीं करते हैं। थ्रेट देने के बाद देखिए 1970 तक साइकोलॉजी जो थी वो ये कहती थी कि पनिश बैड बिहेवियर, रिवॉर्ड गुड बिहेवियर। 1970 के बाद न्यूरो साइंस का दौर आ गया जिसमें फंक्शनल MRIs आ गए और बच्चों के डिफरेंट तरीके से में ब्रेन में देखा जा सकता था कि किस वजह से क्या ट्रिगर हो रहा है ये बिहेवियर, या ये बच्चा अगर रीडिंग कर रहा है तो कौन सा एरिया हाईलाइटेड है, ये बच्चा अगर भाग रहा है तो कौन सा एरिया हाईलाइटेड है, ये रीडिंग कर रहा है या ये उस वक्त हंस रहा है। तो हम जब बच्चे का बिहेवियर देख रहे हैं ना, एक्चुअली व्हाट वी आर सीइंग इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टाइटैनिक क्यों डूब गई थी? Exactly, they didn't know the depth. Yes, Yeah. they did not see what was happening inside. हम जब किसी, चाहे वो एडल्ट चाहे वो बच्चा हो, हम क्या देखते हैं? टिप ऑफ द, oh, he is naughty, he is not listening to me. We are not seeing what is underneath, what's happening is in his brain. So now the science, the behavior dealing is all about neuroscience. And nobody says not to draw lines. Nobody says not to be firm. Gentle parenting is not कि just being too polite and getting them their way. In the end, it goes out of hand. Yeah. It's trying to understand the triggers. ठीक है. Classic behavior. अभी कल ही मैं एक मदर से बात करी थी. The child is 3 years, has a language delay, and I think some other undiagnosed condition. वो बच्चा बड़े अच्छे से खेलता है, बात करता है सब, बट उसकी क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ही इज़ हिटिंग, ही इज़ बाइटिंग। और तो मैंने जब उनके पेरेंट्स से बात करना शुरू करी तो एंड वी ऑब्जर्व दैट केस, तो वी सॉ दैट चाइल्ड हैड द नीड टू मूव। उसे बहुत ज़्यादा उसको जब तक, और जब अकेला है या 2 बच्चों के साथ है तो वो बहुत अच्छे से है, लेकिन जब ज़्यादा बच्चे हैं तो slowly and gradually we found out कि he has sensory dysfunction, he has auditory processing difficulties, कि उसको ऊंची आवाज़, या बहुत सारे लोग सब साथ बोल रहे हैं या उसकी एज के फ्रेंड्स हैं वो सब खेल रहे हैं, वो कोई चीज़ खेल रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं, उसको पता है कैसे खेलना है लेकिन उसके पास वर्ड्स नहीं है कम्युनिकेट करने के, तो वो थोड़ी देर वो कोशिश करेगा, हाथ लगाएगा, लेकिन जब उसकी बात नहीं समझी जाएगी तो what he does, he hits. हिटिंग ने क्या किया? इट गॉट हिम अटेंशन। एक नेगेटिव अटेंशन उसे मिल गया। अब वो ये समझ रहा है कि जब भी मैं मारूंगा, अभी तक तो मुझे अटेंशन नहीं मिल रही ना, जैसे अभी तो सब लोगों से बात कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं हो रही। बाइटिंग उसकी नीड इसलिए कि ही हैज सेंसरी, इज अ पिकी ईटर, खाना नहीं खाता है और वो उसको एक सेंसरी नीड है दैट काम्स हिम डाउन अराउंड द TMJ, जो कि एक बड़ी नीड होती है, हर बच्चे की नीड होती है वो बाइटिंग की। बाइट यू नीड स्पेशली वो बच्चे जिनके साथ ओरल मोटर वीकनेस हो। डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ ये बहुत होता है क्योंकि उनका ओरल मोटर मैकेनिज्म, muscle tone is weak. Yes. They had a very strong need to satisfy that craving, that deep pressure. तो उनको बहुत सारी oral motor exercises कराई जाती हैं that calms that area.
So instead of telling them, oh, you will, supposing एक bite की example है, if you bite, you will not get a candy. Fine, you don't give him a candy, but first find out why did he bite. So while you don't give him a candy, you also satisfy the need to bite. He's telling you that he needs some satisfaction in that area. He's craving for the pressure in the TMJ. Okay. He needs, he may not have explored a lot of textures in his diet. So he's craving for those textures. So, but then I again say, don't forget the forest for the trees. आप देखें कि उस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है. और ये जो जिद का भी कॉन्सेप्ट होता है जो कि आई थिंक स्पेशल नीड्स बच्चों में मैंने बहुत मेजरली देखा है, या इवन अगर हम न्यूरोटिपिकल की बात करें कि लाइक इफ दे आर आस्किंग फॉर समथिंग एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग इट, ठीक है, तो आप एक टाइम तक रेजिस्ट करते हैं, देन यू आर लाइक अच्छा यार प्लीज इसको दे दो, कोई मसला नहीं है, दे दो, थोड़ी देर खामोश हो जाएगा. अब वो अच्छा, क्योंकि इट्स अब सोशल मीडिया का दौर है, तो यू गेट मल्टीपल एडवाइसेस ऑनलाइन. दे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है. अब कहीं पर एक पॉइंट आता है कि नहीं आप चीज़ दे दो, कोई बात नहीं है, उसको उस पॉइंट पर मत लेके जाओ कि वो ब्रेक डाउन हो जाए. और कहीं पर वो कहते हैं कि नहीं, वंस यू गिव इट टू हिम और हर दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ अब तो ये मुझे चीज़ मिल गई है, रो के, तो अब मैं रोऊंगा ना तो हर दफ़ा मुझे वो चीज़ मिल जाएगी. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग आई ऑल्सो स्ट्रगल अ लॉट विद, कि वो अब उसको पता है कि मैं ये जिद करूंगा ना तो मुझे ये चीज मिल जाएगी. सो हाउ डू यू टैकल दैट बिहेवियर व्हिच अ लॉट ऑफ पेरेंट्स टुडे आर सफरिंग फ्रॉम. अच्छा देखिए सितारा, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपका आंसर नहीं दे सकी थी लास्ट क्वेश्चन का. फर्स्ट ऑफ ऑल मदर्स शुड थिंक दैट दे आर ह्यूमंस. ठीक है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स. A lot of them are first time mothers. Do not hold yourself responsible if you make a mistake. कभी आपसे गलती हो जाए, कभी आप ज़्यादा हार्ड हो जाएं, तो don't hold yourself responsible for that, because you are also learning. You are also dealing with this challenge. आपके पास सोसाइटी का प्रेशर है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत लिमिटेड है, आपके पास बहुत कम लोग सुनने वाले हैं आपकी बात. जो आपकी बात सुनते हैं बहुत आपके, you can count them on fingers. सो डोंट थिंक कि आपकी अगर कोई कमी, कोई वीकनेस है किसी को बताने से, या आप अपनी हेल्प लेकर किसी से, यू आस्क फॉर हेल्प. वी आर हियर, वी आर देयर. हम पेरेंट्स से, यहाँ मैं अपने सर्कल में पेरेंट्स से यही कहती हूँ कि प्लीज़ कम एंड टॉक टू मी, टॉक टू अस ऑल ऑफ अ थेरेपिस्ट. कि ये बच्चों की थेरेपी से पहले आप लोगों के साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास तो 1 घंटा है, आपके पास पूरा दिन है. आप लोगों का जो जर्नी, जो चैलेंज है हमसे ज़्यादा है, एंड आई हैव बीन थ्रू दिस, सो आई नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को ह्यूमन समझें और अपने आप को मिस्टेक के लिए जगह दें. डोंट होल्ड योर सेल्फ एंड ब्लेम योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर कि आपसे कुछ सही नहीं हो रहा. यू आर ट्राइंग. And that's the best part. As far as strategies are concerned, there is no one strategy that works with everybody. There is no recipe that works for everybody. एक बच्चा अगर फर्म होने से मान जाएगा तो दूसरा बच्चा देने से मान जाएगा. ठीक है, मगर जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, कि डॉक्टर गैरी मेसेबॉव, हु इज़ द फाउंडर ऑफ co-founder of Teach program, and Dr. Eric Schopler, he says 70% of the behavior problems can be solved by setting a visual schedule. Setting a visual schedule for your child. In pictures, written form, whatever your works for your child. Because हमारे बच्चे जिनके साथ लैंग्वेज डिले होता है, उनके साथ देखिए, आप सुबह उठती हैं ना, आपके माइंड में होता है मैं उठूँगी, फिर मैं ब्रश करूँगी, फिर अपने बेटे को उठाऊँगी, फिर मैं चाय बनाऊँगी, वट एवर, ब्रेकफास्ट करूँगी, अपने काम के लिए रेडी होंगी, और ये सब आपके ब्रेन के अंदर प्रोसेस हो जाता है. लेकिन बाज़ दफ़ा जब बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो आप क्या करती हैं, आप अपनी डायरी बनाती हैं, लिखती हैं, बिकॉज दैट मेक्स यू फंक्शन better, because that gives you predictability. Now think about a child who has very limited language skills, who has auditory processing difficulties, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे ऑटिज्म हो, ADHD हो, CAPD, जो भी कंडीशन हो, इन सब के साथ ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी है.
Now think, you wake up in the morning and your mother is bombarding you with instructions. जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही हो, कपड़े बदलो, and she is just doing it verbally. The home is a chaos time. Yeah. ठीक? The mornings. The mornings are chaos. Then the schoolwork time is a chaos. Going to, prepping for any event is a chaos. Now imagine, and we have done this successfully 100 or 1,000 times. And it has worked wonders. We follow the TEACH methodology here, along with the Falter and Padavin. हम बच्चे का स्केड्यूल सुबह का लगा देते हैं. द चाइल्ड, आप बच्चे को बिल्कुल काम एनवायरनमेंट में उठाएं और he wakes up, show him the picture. Good morning, wake up time, just say. And relax with your kid. That will relax you too. Then show him the next picture. It's bathroom time. Let him take his time. He goes to the washroom. Washroom का schedule लगा हुआ कि ब्रश करना है, टूथपेस्ट उठाना है, ब्रश करना है, इधर जाना है. बाहर आए, चेंजिंग क्लोथ्स, एंड यूज मिनिमम वर्ड्स. पेरेंट्स कहते हैं कि अगर हम पिक्चर्स लगाएंगे तो बच्चा बोलेगा नहीं. मैंने कहा आप ये बताइए कि आपके एक्सेसिव बोलने से वो बोल रहा है? नो. आप जब, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल बात करेंगी और वो सुनेगा वो मीनिंग, तो वो खुद उसके ऊपर बिल्ड करेगा. And this is again Dr. Eric Shopler's and Dr. Gary Mesabov words. K pictures will facilitate language. They will not inhibit language. They are not my words. But in my personal experience, I have seen how have children thrived on visual schedules. How we have taught them shopping, we have taught them hair cutting, we have toilet trained them, we have trained them for birthday parties. जो बच्चे बर्थडे पार्टी में रोने घबराने लगते थे, वो सिखाया है हमने विजुअल के. एंड ट्रैवलिंग, फ्लाइट्स में ट्रैवलिंग, कि घबरा रहे हैं बच्चे, क्यूज़ में नहीं खड़े हो पा रहे, हमने थ्रू विजुअल स्केड्यूल्स हमने बच्चों को सिखाया है. एंड लिटरली, एंड इट्स नॉट माई आइडिया, इट इज़ अ ट्रायल एंड टेस्टेड, फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मगर हमारे पाकिस्तान में अभी तक मिसकॉन्सेप्शन है कि पिक्चर्स देंगे तो स्पीच नहीं आएगी. इट्स अ वेरी आउटडेटेड सिस्टम थॉट कि अब स्पीच थेरेपिस्ट के डोमेन में स्पीच यानी वर्ड्स एक मोडालिटी है, साइंस, पिक्चर एक्सचेंज, कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड ऑल्टरनेट, ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर गैजेट्स. सब चीज़ें शामिल हैं. एक स्पीच थेरेपिस्ट का काम ये नहीं है कि वो उठा के बाप आपसे बुलवाए, नहीं तुम बोलो कार तब तुम्हें कार मिलेगी. दैट्स कंप्लीटली आउटडेटेड. जब तक आप बच्चे को एक स्केड्यूल, एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम में लाते हैं, स्पीच व्हेन द क्या है ये ऑटिज्म, ADHD है, इट्स द लैक ऑफ इंटरकनेक्टिविटी इन द ब्रेन ना. The message is going in, but the way it is being processed inside the brain, it lacks interconnectivity. What does structure do? It provides that connectivity. जैसे टेम्पल ग्रैंडन ये कहती है ना, और मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी सिंगापुर में, वहाँ एक डाउन सिंड्रोम और एक डाउन सिंड्रोम एंड ऑटिस्टिक बच्चे, ठीक है, जो लोग they had jobs. But what they would do, they would draw everything. And Temple Grandin, वो livestock handling करती है. तो when she designs machines, she draws every step. When she takes the cows for milking, she draws every step. Like जैसे हम डिज्नी में पहले बनता था कि वो ड्रॉ करते थे. Storyboarding kind of is kind of a thing. Yeah. So that's what they do. And हम लोगों ने इतने बच्चे ट्रेन किया, और जिन पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ उन्होंने 4-5 साल बाद अब दे आर ट्रैवलिंग. यस, 1-2 साल आपके लिए टफ होते हैं, आपको उसको एक मेथड इन प्लेस करना होता है, बट उसके बाद द वर्ल्ड इज ओपन टू यू. वही बात आ गई ना, द पेडागॉज शुड नो द पाथ फ्रॉम विच टू टेक द चाइल्ड. ट्रू. अभी जैसे आपने ये बात करी कि ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं टू डेवलप द स्पीच फॉर अ चाइल्ड या मेक देम कॉन्फिडेंट इनफ. अब आप विजुअल्स की जैसे आपने बात करी, तो अगर हम उसमें गैजेट्स इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारा अभी एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जो काफ़ी पेरेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराते ड्यू टू मैनी रीजंस. और उसमें ये भी है कि टेक्नोलॉजी का यूजेज
अक्सर आजकल जो है, अब आई डोंट नो क्योंकि आई डू रीड अबाउट इट अ लॉट एंड कुछ रिसर्च ऐसे सामने भी आती हैं, बट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कि इज इट ट्रू कि टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी नेगेटिव रोल ऑन द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड? ठीक है, उनमें डिलेज आ रहे हैं, और जहाँ तक अगर स्पीच इन्हांस होती है तो काफ़ी जगहों पर ये भी सुनने में आता है कि स्पीच डिलेज भी टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं. सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस कि ऐसा है? देखिए, हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड और यूज़ होता है. सपोजिंग कोई शख्स किताबें ही पढ़ता है, लेकिन अगर वो दिन रात किताबें पढ़ता है और ज़िंदगी का कोई काम ना करे, वो भी तो हेल्दी नहीं है ना. ठीक है ना. तो हर चीज़ का बैलेंस, और क्या पढ़ रहा है, अगर वो उल्टी सीधी किताबें पढ़ रहा है तो वो भी तो अच्छी नहीं है ना. सो टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स द वे ऑफ लाइफ अहेड. आपने कि मुझे बहुत ही, यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट. अगर आप अभी हमारे जो हम लोग असेसमेंट्स आजकल कर रहे हैं, अगर आप हमारे इनिशियल कंसल्टेशन के फॉर्म्स पढ़ें, तो ऐसा लग रहा है कि मैं पेरेंट के शुरू करते ही फॉर्म खुद फिल कर सकती हूँ. उन्होंने, जो पेरेंट्स ने बच्चों को 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने की उम्र से अनसुपरवाइज्ड या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ आवर्स दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली वो तो उनके साथ तो प्रॉब्लम होगा ना. देखिए, गैजेट ऑटिज्म से ऑटिज्म नहीं होता. देयर इज़ नो डायग्नोसिस एज वर्चुअल ऑटिज्म इन DSM-5. ये पता नहीं लोग खुद कुछ बना रहे हैं. ये कोई ऑथेंटिक डायग्नोसिस नहीं है. गैजेट से डाउन सिंड्रोम नहीं हो सकता, गैजेट से ADHD नहीं हो सकता, गैजेट से हियरिंग लॉस नहीं हो सकता. इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ exposure that you give to your child. They are amazing apps that can be given. अगर आप यूज़ करें, अगर आप सपोजिंग AAC इस्तेमाल करें, so you don't have to give an internet connection on that. आप अपनी मर्ज़ी के सिर्फ ऐप्स डाउनलोड करके, जो एजुकेशनल ऐप्स हैं, थोड़े गेम ऐप्स हैं, आपने डाउनलोड करें, और अगेन यू मेक अ स्केड्यूल कि आपने स्केड्यूल में आधा घंटा आपने टैब्स के लिए लगा दिया, फिर आपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए लगा दिया. और मैं आपको बताऊं, हम अपने बच्चों को, अब हमारे पास मदर्स पूछती हैं कैसे बिजी करूं मैं बच्चे का पूरा दिन, है ना. इट इज़ सुपर ईजी. मेक योर चाइल्ड, हैव योर चाइल्ड हेल्प यू इन क्लीनिंग द कबर्ड. जब लॉन्ड्री धुल के आ रही है, उसे खुद अपने कपड़े रखने हैं. आप खाना बना रही हैं, he will help you make salad, he will help you peel pods, he will help you lay the table, clean the table, he will help you dusting, mopping the floor, carrying heavy buckets, help in your grocery, putting it in its place, washing fruits and vegetables. हमने बच्चों के साथ काम किया, हम लोग करते हैं ये cooking fault method, which actually works on the activities of daily living. We have Miss Eva Bana coming every year and she trains us and she says, मैंने दुनिया में इतने sensory deprived बच्चे नहीं देखे जितने मैंने पाकिस्तान में देखे. इसलिए कि आपके साथ क्या है, जब बच्चा आता है उसके साथ उसकी मेड आ रही है, वो उसके जूते उतार रही है. 6 साल का बच्चा है, उसको जूते उतारना पहनना नहीं आ रहा है, एंड देन यू आर सेइंग दैट ये बच्चा इसके ग्रॉस मोटर डिलेड है. पहले तो बताइए कि आपने उसको सिखाया, कि आपने उसको कहा कि 2 साल की 1.5 साल की उम्र से वो अपने शूज़ खुद पहने उतारे और आपने उसको हेल्प की. आपने उसे टीवी के आगे बिठा के खाना खिला दिया. क्या आपने उसको बताया, तुम उसके हाथ, आपने कहा कि सब गंदा हो जाएगा, तो आपने ये किया कि शीट डालो, उसके आगे खाना रखा, गिरा रहे ना. दैट्स लर्निंग बिकॉज ही इज द टेक्सचर बिफोर गोइंग इनटू द बॉडी गोज इनटू द हैंड्स. फर्स्ट पहले टच, सबसे सेंसिटिव टच ये, और बिलो द फीट. आप उसे पूरा दिन शूज़ पहना के आपने हर जगह आप लेके जा रही है, आपने किस वक्त उसे बेयर फुट भागने दौड़ने दिया. उसको आपने ब्रशिंग टीथ, आप कह रहे हैं बच्चा 8 साल का और है अभी, ही इज टेक्टाइल डिफेंसिव, बिकॉज आपने बचपन से आपने कहा नहीं करता, आपने हाथ से पकड़ के छोटा मोटा करा के छोड़ बनाई हुई है ना. वो डिले इसलिए हो रहा है, हमारे डिले जो कहते 60% 70% कवर हो जाएं अगर हम एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग में बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें. उन्हें नहीं पता उनका बैक
कि उन्होंने खुद नहीं बनाते बच्चे, अपना लंच बॉक्स खुद नहीं बनाते, अपनी बॉटल सिर्फ स्कूल के गेट पे जाके देखें क्यों गाड़ियों की लाइन लगती है, क्योंकि गेट पे हम बच्चों को उनका बैकपैक पकड़ाते हैं और बॉटल देते हैं। अगर वो सब वो खुद लेकर कर रहे हो तो इट वोंट बी लेट। And I've seen a very positive and calming effect on my son whenever I involve him in my daily chores. Yeah. And he loves it. और ये Yes. मैं ये बहुत डालती भी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी, so everybody asks me कि he enjoy, मतलब उसके चेहरे पर एक स्माइल अलग होती है, एंड यू नो कि वो खुद से खुद मम्मा मैं इसमें हेल्प कर दूं, हाँ. मैं मसाला डाल दूं, मैं पानी डाल दूं, तो एंड यू नो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है ना उसका जो एक अग्रेशन होता है या गुस्सा या चिड़चिड़ाहट, he calms down. Because he's feeling useful. Yes. He wants to be useful. आप खुद सोचें ना, आप कितनी देर तक खाली बैठ सकती हैं? अगर मैं फ़ोन भी ले लूँ आपसे, सारे आपकी रिस्पॉन्स, बस स्कूल जाएं और आके खाली तो नहीं बैठेंगी ना। ह्यूमन ब्रेन वॉन्ट्स टू लर्न। द ह्यूमन ब्रेन इज यू नो ओनली कहते हैं 2 to 3% इज ऑक्यूपाइड। द ब्रेन वॉन्ट्स टू लर्न, सो मेक इट लर्न। उसके जिम्मेदारी, उसके पूरा दिन हमारे जो बच्चे आते हैं हम उन्हें होम प्लान बना के देते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद उठेंगे, अपनी प्लेट वापस रखेंगे, चूज़ करेंगे मम्मी को रात को अपने कपड़े स्कूल के खुद यू नो हैंग करके रखेंगे, अपना बैग की बुक्स चेक करेंगे। आप देखिएगा आपका और उसका दिन ऐसे गुजरेगा, इतना प्रोडक्टिव, इतनी कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज। देखिए थेरेपीज़ में क्या है, एक थेरेपी के अंदर हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, है ना। घर के अंदर सपोजिंग मैं बच्चे को सिखा रही हूँ, से द वर्ड कुकिंग, द वुमन इज कुकिंग, से द वर्ड जंपिंग, द वुमन इज जंपिंग, से द वर्ड ब्रशिंग, द वुमन इज ब्रशिंग। बट इफ सपोजिंग I do it at home. When the child is brushing, let's go for a bath. It's your time for bath. I become a facilitator, not a tester. Don't test. What are we going to do? हम लोग क्या करते हैं, हर वक्त अपने बच्चों को टेस्ट करते हैं। नहीं, सवाल का जवाब देना है कि नो, जब बोलोगे वी आर गोइंग फॉर अ बाथ तब लेके जाऊंगी, जब बोलोगे आई वांट अ कुकी तब दूंगी। और इंस्टेड बिकम से व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू से। Say, okay, let's have a cookie. Oh, do you want a cookie? I also want a cookie. आपने क्या करा, मॉडल कर दिया, उसने सुन तो लिया ना उसके माइंड में, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, and then it will start making sense and you are showing the picture at the same time. And then you enjoy the shower time as well. Oh, let's go for a shower. I am taking your shirt off. We are pouring shampoo. Oh, it's making bubbles. Yeah. And you just do, then it won't be a chore for you. It won't be a chore for your kid. This is exactly what I used to do with my son. मैं अपने बेटे को स्कूल से लेके, मैं खुद ड्राइव होती, मैं जा रही भी होती थी, हम लोग, मैं से कभी नहीं पूछती थी आज क्या पढ़ा, हम लोग जनरली बातें करते थे, यू नो, उसकी इंटरेस्ट का, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल वर्क की। तो मेरी अक्सर होता था कि कभी कोई पास से गुजरता था, कहता यार इट्स सो यूजलेस टॉकिंग टू यू, तो इवन लुकिंग एट यू, तुम और सलमान इतने बिजी होते हो, यू डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। हम लोग दोनों रेस्टोरेंट जाते थे एंड वी वुड टॉक, वी वुड ऑर्डर, देन वी वुड टॉक अबाउट द फूड, वी टॉक अबाउट व्हाट, वेटिंग टाइम पता ही नहीं चलता था। और हम यहाँ पे भी, हमारे थेरेपिस्ट एंड अंबर इज़ वन ऑफ देम, के हम बच्चों को लेके जाते हैं रेस्टोरेंट्स और वहाँ उनको सिखाते हैं, और वेटिंग टाइम पासिस लाइक दैट। वी टेक देम टू मॉल्स, शॉपिंग में कहते नहीं हम शॉपिंग में तंग करता है, वहाँ जाके मारता है, भाग जाता है। 2 visits and the child loves, and mother says now I can take him for shopping. So it's just, you know, don't be scared. Being scared isn't bad, but find out a strategy to, you know, become that pedagogue, become that teacher. How will, and become a, बार मैं कहती हूँ, don't test your child, become a facilitator. टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि ये करो। इट्स एन टीच योर चाइल्ड इन एन इकोलॉजिकली वैलिड एनवायरनमेंट एंड मीनिंग कि जहाँ वो हो रहा है। कुकिंग करिए ना, आप कितनी चीज़ें सिखा सकती हैं, कटिंग, चॉपिंग, पोरिंग, मिक्सिंग, सो गुड फॉर द हैंड मूवमेंट्स एंड जिनके सारे फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, पीइंग पॉड्स। छोड़ दीजिए ये जार्स, ये जूसर्स,
पुराने तरीके से जूसेस निकलवाइए, लेमन स्क्वीज कराइए, पुराने जो हमने वो, लेकिन वो ना क्लीनलीनेस का वो होता है ना माइंड में कि नहीं गंदा हो जाएगा, और वो चीखना चिल्लाना, डोंट डू दिस डोंट, अच्छा ये होता ये है भूल जाएं। एंड बट मसला देन अगेन वही आता है कि एज अ पेरेंट एंड एज अ मदर एज अ फादर यू अंडरस्टैंड, बट देन हम क्योंकि बहुत से लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो वो हर किसी को उस पे जो है ना अलाइन करना ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। Agree. पेरेंट समझ गए, मदर तो पता है, अब भाई बच्चे ने अगर कोई एक्सीडेंट कर दिया, कुछ गलती से कर दिया, तो जो है दूसरे घर वाले व्हाट डिड यू डू, और ये क्या कर दिया, फिर वो मदर को बुलाया जाता है, उसको चीखना चिल्लाना, तो ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत हमने की वो इट बिकेम जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेशर, बट आपने अपने लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया था, एडवोकेट। Now here is the advocate who is not in the court, who is not writing laws, who is actually acting them out, implementing them at home. You are your child's advocate. उस वक़्त क्या होता है, माँ इतनी घबरा जाती है, इतनी नर्वस हो जाती है कि बच्चा फ़ौरन एहसास करता है कि मैंने गलत किया। ठीक है, इफ़ दैट वॉजंट इंटेंशनल, बच्चे से गलती हो गई है और गलती हो भी गई है, एक्सीडेंट हो गया है, सो इट वॉजंट इंटेंशनल, आप भी नहीं चाहती थी, बच्चा भी नहीं चाहता था। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्टे काम। हैविंग सेड दैट, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट आई एम टेलिंग यू हैव डन इट, एंड दिस इज वॉट आई टेल अ लॉट ऑफ मदर्स। एट दैट टाइम येस एवरीबडी इज गोइंग टू कम, आपको बहुत खौफ है, बहुत डर है कि लोग आएंगे मुझे कहेंगे, stay calm, say I know, I will handle it. That's what the advocate is. आपका लॉयर ये कहता है ना कि मुझे बस दे दो ना, बस मैं तुम्हारा भी सारा सॉल्व करके दिखा दूंगा। Now from the Lord has sent you as an advocate for your child. You stand there, you say I know this has happened, I really want all of you not to panic, it's my responsibility, I will manage, and everything will be back in its place. हो first, and before trying to mop the floor, जो टूटी हुई चीज़ आप उसको उठा रही हैं, कुछ गंदा हो गया उसको साफ कर रही हैं, first hold your child, take him away from that situation, hug him, calm himself down. अगर उसने जानबूझ के किया है तो उस वक्त just hold him, tell him to be there for a minute, give him something that he likes to do, go clean up that place or solve that situation, whatever it was, then come back to your child. And instead of giving him a sermon, take a social story with minimal verbalization and try to, and हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने बच्चे को ये सिखाया ना कि तुम ये चीज़ें तोड़ते हो, तुम गिराते हो, तुम मारते हो, तुम झूठ बोलते हो, कभी बच्चा नहीं सीखेगा। Social stories are always done in third person. You make up a story, a character, कि उसने ऐसे, एंड देन जो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ ये है, जैसे एक बच्चा मारता है तो हैंड्स आर नॉट फॉर हिटिंग, टीथ आर नॉट फॉर बाइटिंग, है ना। सो हम ये इतनी सारे इस तरह के आपको तो ये पॉजिटिव यूज़ ऑफ मीडिया, अपनी जांच, फिर वो बच्चा देखने के लिए आदी हो जाएगा कि आप उसे वो वाली चीज़ें देखने के लिए दे सकेंगी। इट्स जस्ट द पेरेंट्स हैव टू सिट एंड find out those useful resources. And I'm not saying the parents को अभी सब कुछ पता होगा, आपके साथ हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कौन हैं? हम कोचेस हैं। हम कोच हैं, वो स्कैफोल्ड हैं जिसे हट जाना है। जब एक इमारत बनती है तो ये होता है ना कि पहले लकड़ी का फ्रेमवर्क बनता है ना, और फिर ईंटें आती हैं, फिर वो उसकी बेस बनती है। तो हम तो वो स्कैफोल्ड हैं, वो लकड़ियाँ हैं जिसे हट जाना है ना। हम वो कोच हैं जिसने प्लेयर्स को आउटसाइड द कोर्ट ट्रेन करना है। हम ज़िंदगी का जो स्पोर्ट है, ज़िंदगी का जो गेम है ना, वो तो आपने और आपके बच्चों ने खेलना है। जैसे कि मैं उसमें शामिल हूँ, मैं एज अ मदर ऑफ माई सन, तो आई हैड टू प्ले दैट गेम, आई हैड टू बी हिज, बट अब वही आई एम ट्राइंग टू बी द कोच टू अदर पेरेंट्स। उनको आई एम माई टीम, आई एम नॉट डूइंग इट अलोन, आई हैव अ वंडरफुल टीम, और
you know, the proud and the best moments that I have is when my team and we share the same mindset. Same. Because therapy is about mindset. When they also believe in what I can't do this. A circle is not a one-man show. The circle is a teamwork. बिल्कुल ऐसे। So हमारा काम है कि हम पेरेंट्स it's not therapist versus parent, it is therapist and parents. Exactly. आप लोग के हाथ में तो मुझे याद है ना, when first I had I had my son diagnosed and I coming back from the doctor, क्योंकि hearing impairment तो नज़र नहीं आती है ना, 6-7 months के बाद जब हमारी रिपोर्ट आई है और हमें जब पता चला है तो ऐसा लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई है, दुनिया ख़त्म हो गई और कोई कुछ नहीं बता सकता था कि क्या हो गया। ऐसा लगता था अब क्या होगा। At first ride back home after hearing the diagnosis, Yes, it's like the drive so back shattered. home is never ending. exactly the And silence. the silence. I still, मुझे वो scene is in my memory. And the doctor standing up, seeing the report. हम तो वो report पढ़ ही नहीं सके थे. Yeah. Doctor standing up, telling you, just accept that you are the parent of a deaf child. अब ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. And then that child is in your arms and you're just looking Yes. at the child and you are like looking at the child. the 9-month journey is going on and the Yeah. first time they came in your arms और Yeah. देखना कि and you know that constant question maybe कि वो गलत होता है वैसे सवाल करना कि God why me या why and you know at that point you're only hoping कि वो तकलीफ में ना हो, बच्चा तकलीफ में ना हो, बस उसकी जो तकलीफ है Yes. वो उससे तकलीफ नहीं हो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, उससे तकलीफ ना exactly, हो. the very first time I remember when my husband told me कि the doctors have like they have this कि शक है उनको कि ना he might have Down syndrome. So I just looked at him and I cried and my very first words were कि is he okay? इसको कोई तकलीफ तो नहीं है. I didn't care कि मैं क्या फील होगा, इसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना. मैंने कहा नहीं सही तो लेटा हुआ है, क्या he's fine? Why you scared? ये तो बिल्कुल ठीक है. यही बिल्कुल कि और जब क्या आप उसे देखते हैं तो आपको हो रहा था कि पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है कि और आपको लगता है कि बस माई लाइफ इज जस्ट हिम, इससे कोई कुछ नहीं करे एंड देन यू बिकम दैट वॉरियर हु इज रेडी टू अंदर से आपके वाकई में वो निकल के आता है ना वॉरियर के नहीं इट्स द वर्ल्ड अगेंस्ट अस. यस तो वो वाला माइंडसेट ना वो एक बहुत एम्पावरिंग माइंडसेट भी होता है बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी शैटरिंग. It's very shattering, yes. As well. And you use the right word. Okay, you against the world. Yeah. It's you are against the world. Yes. So I would very much like to know this in the बस ये second last and then we move towards the last question कि you were a working mother. Later on you decided. ठीक है तो you know a mother who's not working outside the home so it's easier to build the schedule जैसे आपने बात करी but somebody who's like has a job or a business to run so it becomes a little bit challenging for them you know to handle such situations तो उनके लिए like what do you suggest कि how should they you know cater the situation at hand. देखिए I wasn't a working mother at that time. I was a full-time homemaker but I started working when he started going to school. So I would go to school with him and come back. But I have to tell, I have seen many mothers who have managed it beautifully. First of all, stop feeling guilty. कि ओ मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ. Oh, the guilt. Yes. उससे निकालिए because that will फिर क्या होगा आप कॉम्पेंसेट करेंगी और आप क्या करेंगी जो आपके पास कम टाइम है अपने बच्चे के साथ उसमें आप कॉम्पेंसेट कर रही होंगी. ओ मैंने आप कॉन्सेंट आपका माइंड आपसे कह रहा होगा क्योंकि मैं काम पर थी मैं कम टाइम में मैं अभी ये भी कर लूँ ये भी करूँ मगर योर चाइल्ड विल नॉट बट योर चाइल्ड डजंट नो दैट और उसकी पेस नहीं है आपको उसकी पेस से चलना है. You can, if you develop a schedule for him, involve him in different activities, and I can guarantee you can maintain a very healthy work and life balance. I've seen mothers who are housewives. They say, "Oh no, we are with our kids all day," but they hardly do anything. They don't do anything with their kids. And I've seen working mothers who have done wonders. जिनके बच्चे इस वक्त हम हैरान रह जाते हैं how are they managing. It's just remove that guilt. Remove that guilt.
दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग। मतलब ये आपने बिल्कुल ना मेरे बड़ा दिल के करीब था इस सवाल, क्योंकि कॉम्पनसेशन वाली जो बात आपने करी ना, दैट इज हाँ एग्जैक्टली व्हाट आई आल्सो हाँ यूज्ड टू थिंक कि मुझे ना 8 से आज रात में वापस आते आते ना 7 बज गए, तो मेरे पास 7 से 10 तक का टाइम है, उसमें मैं मैक्सिमम जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर लूँ। don't do that, use that time to teach, but you use that time to bond. यस। You can bond in beautiful ways, many ways. if अगर आप डिनर प्रिपेयर करती हैं, ही इज विद यू, यू उसका बेड बनाती हैं, दैट कुड बी योर फन मोमेंट. यू रीड अ बुक, दैट्स योर फन मोमेंट. डोंट ट्राई टू टीच हिम इन दैट बुक, मेक इट फन फॉर हिम. आप नेक्स्ट डे के लिए प्लान करें, उसको डेज के नाम सिखा दें, उसको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दें, स्केड्यूल बनाना सिखा दें. Talk about his clothes, talk about what he watched, talk about anything that he did at school that he liked. Talk about a person, anything. ब्यूटीफुल। Just make a salad with him. Make bed with him. You do brush the teeth together, have fun, talk about it. No, that's exactly, it's so amazingly you've put it out there. So, in the last, I would love to know, we have discussed such beautiful topics and covered such beautiful areas. So, in the circle, a lot of people would like, हम बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ और बहुत सारे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं एज पेरेंट्स और स्पेशल नीड्स जो कि इस डोमेन में काम करें. सो सर्कल का आप मुझे अगर थोड़ा सा एक समरी बता सकें कि व्हाट आर यू डूइंग एट सर्कल, और सर्कल में हम बच्चों को केटर भी कर रहे हैं, साथ साथ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट किस तरह से आप थेरेपीज पेरेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं. सो हाउ डज योर मॉडल वर्क? जी, our model works in a way कि हमारे यहाँ सबसे पहले अगर बच्चा इवैल्यूएशन के आता है तो हम एक इनिशियल असेसमेंट करते हैं, विच इज़ एन इनफॉर्मल असेसमेंट. बेस्ड ऑन दैट हम अगर देखते हैं कि बच्चे को फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है तो वी कंडक्ट अ न्यूरो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन. और अगर उस बच्चे को हम देखते हैं कि ओके देयर इज़ अ डायग्नोसिस की तरफ बच्चा जा रहा है तो फिर हम वो कराते हैं. अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि नो देयर अदर फैक्टर्स, सो वी put the child into different therapies. We make a holistic program for that child. जिसमें स्पीच थेरेपी होती है, बिहेवियर होती है, ऑक्यूपेशनल होती है, काउंसलिंग होती है, प्ले थेरेपी होती है. पेरेंट का जहाँ तक बात है, वी वांट द पेरेंट्स टू बी देयर इन द सेशंस. वी वांट हमारी जो थेरेपिस्ट हैं वो पूरी उनकी कोशिश होती है कि वो नॉट इवन आफ्टर एवरी सेशन, बट हम एक होम प्लान पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, हम गोल प्रोवाइड करते हैं और हम पेरेंट को विजुअल स्केड्यूल प्रोवाइड करते हैं. हम उनको सिखाते हैं कि इसको कैसे फॉलो करना है घर के ऊपर. और अभी रिसेंटली आई हैव टेकन a license and certification for More Than Words program, which is a Henin program, which is a coaching program for parents. And inshallah I'm going to start for the parents here in Pakistan. We are in the process of organizing our seminar. As soon as we are done with the seminar, I'm going to start, that coaching for parents, how to develop social communication and connect to your parents, and how can you make your home environment useful. And my team, I'm also training my team on that. So we maintain a constant interaction with parents. अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं ना, हमारे पास ड्रॉप करके चले जाते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि क्या हो रहा है. प्लीज़ कम एंड सी, प्लीज़ कम एंड सी. वी हैव दीज वन साइडेड मिरर्स, पेरेंट्स आर अलाउड टू सिट. वी से कि पेरेंट्स आर द कोचेस, पेरेंट्स आर द को थेरेपिस्ट्स. उनके बगैर जर्नी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. द चाइल्ड विल नॉट अटेन विदाउट दैम. हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, ऐसा ही है. हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं. हम कितने भेज दिया, आप बस कर दें, आप क्यों नहीं आ रहे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा जब तक आप अपने बच्चे की थेरेपी का हिस्सा नहीं बनेंगे. हमारे just this much that we can do. True. Yeah. So, last question, Ms. Sadaf, what was, as a mother, in your experience, what was one best and worst advice you received as a parent of a special needs child? The worst advice that I received was at the time of diagnosis. जब हम रिपोर्ट लेके गए थे, हमारे एक जो पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने हमें बोला कि आपने अब नाउ यू शुड एक्सेप्ट दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ अ डेफ सन, and he will never be able to talk.
और जब ये 10-11 साल का होगा तो हम इसको हियरिंग एड लगा के या साइन लैंग्वेज लगा के देखेंगे कि ये क्या कर सकता है. So that was, and imagine that was the day I was diagnosed. My son was diagnosed. And you are talking to a first time parent. And it was a seasoned pediatrician. And the best advice I received was again from another pediatrician who said, "Why did you not come to me straight with the report? I am going to I'm going to connect you to another pediatric, another ENT. We are going to provide him hearing aid right now, and then the world will be open to him." That's so beautiful. I think pediatrician ये जो doctors होते हैं ना उनका Yes. बहुत massive Major impact role होता है. आपकी Yes. journey start ही वहीं से हो रही है Start the वहीं day से the होता है. child is diagnosed. Yes. So thank you so much Miss Sadaf for this wonderful conversation. I think मैं जितना बताने के लिए आई थी उतना मैं सीख के जा रही हूँ और आधे ज़्यादा सवाल तो I think जो मैंने लिखे थे वो मैंने पूछे भी नहीं, but you answered them so beautifully. मगर आप मुझे प्रेप करवा दी उनकी. So thank you so much once again, and I think I'm too emotional to conclude the conversation, and everything is going on in my mind right now. But what I can summarize is that child, be it a neurotypical child or a special needs child, is a child. Yes. So Yes. treat him as a normal person. अपने माइंड को इतना काम रखें, इतना कंपोज रखें. आई थिंक आई हैव ऑल्सो बिन मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एज अ पेरेंट. आई डू कॉल माई सेल्फ एन एडवोकेट एंड आई एम एन एडवोकेट. आई सपोर्ट the rights of these children, but I think I also need to learn that there are many things that can happen and I can do positively even more. So just consider your child a child. Yeah. Be positive, have an open mindset, and that's it for today. And thank And you have so much. faith Have in yourself, Yes. in your child, and first and foremost, ऊपर वाला जिसने भेजा है ना उसने पहले आपको उस जिम्मेदारी के लिए तैयार किया है. Exactly. One of, I just like to say a few of the chosen ones. It just gives me some Yes, sort of yes. positivity and Yes. happy feeling that you are one of the chosen ones. You Yeah. have these beautiful children in your life. Exactly. They are amazing. And thank you so much for listening to this conversation. And inshallah ta'ala, I'll see you in the next episode. Allah Hafiz. Inshallah. Inshallah.